थैंक यू चेयरमैन साहब। हमारी CIRC सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डे बाय डे सम यूनिक फीचर्स, यूनिक प्रोग्राम्स अपने मेंबर्स के लिए लाने का प्रयास कर रही है और लगातार कुछ न कुछ नयापन आपको दिख ही रहा होगा। अभी इसी कड़ी में हम FNA का एक नया सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें फोर्टनाइटली हम न्यूज एनालिसिस करेंगे। न्यूज रिगार्डिंग फाइनेंस, अकाउंट्स, current affairs, whatever it may be connected with all of us, may be right and useful for our profession, may also be right and useful for our daily life, routine life also. So because we all chartered accountants, many of us are so much busy that they have no time to go through the news and analyze it properly. So we are trying to bring you all the relevant news and their analysis by the expertise. For this program, we have with us our respected chairman of CIRC, CA Nilesh Gupta ji. I welcome you, sir. Our vice chairman of CIRC, CA Atul Agrawal, sir. I welcome you also, sir. And our guest faculty for this FNS series, CA Tarun Mahajan ji. I most welcome you, sir, for this program, and I am very much grateful to you for giving your consent, for giving your use and analysis regarding our news to the members of CIRC. Also, we have with us CA Nirbhay Gandhi ji. Welcome, sir. And all the attendees whosoever are attending this program, I welcome you, all of you, and I am sure that by the news analysis by Tarun Mahajan, you will definitely be benefited in your life and in your profession. For this, first of all, I would like to invite our respected chairman, CA Nilesh Gupta ji, for welcome speech. Nilesh sir. Thank you, sir. Thank you very much. Respected Vice Chairman ji, Atul Agrawal ji, CIRC. Respected Secretary Shashikant Chandrakar ji from Raipur. Respected CA Tarun Mahajan ji, news analyst of today's program. Very unique program. First time at the platform of, we can say at the platform of ICAI, this kind of program would be, I think, first program. मुझे लगता है कि इसका एक्सपीरियंस हमारे मेंबर स्टूडेंट को पहली बार होने वाला है। तो ऐसी इनोवेटिव सोच के साथ रखते हुए मेरे गुरु तरुण महाजन जी को सादर नमस्कार एंड वेलकम टू द इज ऑन प्लेटफॉर्म CIRC. Respected Secretary of the Bhilwara branch, Nirbhay Gandhi ji, Anil Yadav ji from Jaipur, past chairman Jaipur branch, very respected viewers of the today's this unique FNA series, dear members and students, very good evening to all of you. जिस प्रकार से CIRC आप सबके लिए जो आपके इंटरेस्ट के प्रोग्राम हो सकते हैं, जिस तरह की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, जिस तरह के सजेशंस हमारे पास आते हैं और जिस तरह का स्ट्रक्चर हमारे मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स का है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं इनोवेटिव सोच रखते हुए और आप सबके सपोर्ट के साथ प्रोग्राम्स लॉन्च करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब उनको पसंद भी कर रहे हैं और हमारे पास सजेशन भी आते हैं, उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। उसी सीरीज में आज ये हमारा प्रोग्राम है FNA फोर्टनाइटली न्यूज एनालिसिस। वी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर वेरी मच स्मार्ट, very much dedicated to our profession, very much dedicated to our studies,
very much dedicated to our client, very much dedicated to amendments related to laws, revenue laws and other laws. But कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स होते हैं, कहीं ना कहीं जो रूटीन अफेयर्स होते हैं कंट्री के इंटरनेशनली, उन सबको एनालिसिस करने में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा मतलब हमारी प्रायोरिटी वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग इतना उलझे हुए रहते हैं, इतने सारे चेंजेस और बदलाव आते हैं, और बीइंग ए पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उन बदलावों को समझ करके, उन बदलावों के प्रभावों को समझते हुए, उनके उनके साथ क्या ऐसे परिणाम होंगे उनको समझते हुए, और हम हमारे इस देश के स्टेक होल्डर, हमारे इस देश के टैक्स पेयर्स, हमारे इस देश के जो करदाता हैं, उन लोगों को अवेयर करते हैं और उन लोगों से किस तरह से कंप्लायंस सही हो, ताकि इस देश में किस प्रकार से रेवेन्यू की बढ़ोतरी हो, वो सब काम करने में हम लोग लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेन फोकस है वो उन चीजों पर हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, उसी के साथ इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो दुनिया में घटित हो रहा है, उसी से हम जो आज वर्तमान में हो रहा है उसी को एनालिसिस करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन ऑफ अवर क्लाइंट्स टू, ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेस्पेक्टेड तरुण महाजन सर ने ये एक इनोवेटिव आइडिया सुझाया, और उन्होंने इसके लिए सपोर्ट देने के लिए फ्री मतलब मुक्त हस्त से बताया कि नहीं, मैं इस प्रोग्राम को मॉडरेट भी करूंगा और लॉन्च भी करूंगा, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मेंबर्स, बट इट इज वेरी मच रिलेटेड, वेरी मच कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज स्टूडेंट्स भी हमारे चूंकि बताते हैं, सीए बताते कि हम सबने किया ही है कि सीए में आदमी का एक ही टारगेट होता है, वह मछली की आंख, कि मुझे उसके ऊपर निशाना लगाना है, मुझे किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है। हमारे मेंटोर, हमारे एम्प्लॉयर, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे गुरु, हम सबको यही बताते हैं कि हमारा टारगेट है सीए फाइनल का एग्जाम, जो कि एक टफेस्ट एग्जाम है, उसको पास करते हुए और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री कॉमर्स में मिलती है वो लेना। बट उसी के साथ जरूरी हो जाता है करंट अफेयर्स को समझना, क्योंकि वो भी रिलेवेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेंबर्स और स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट करते हुए ये प्रोग्राम सीआईआरसी की तरफ से आप सबके लिए पेश है, विद द एक्सपर्ट एनालिसिस ऑफ तरुण महाजन सर। हम सब इसके लिए बड़े ही उत्सुक हैं और बड़े ही लालयित हैं कि इस प्रोग्राम में हमको क्या मिलने वाला है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता है कि इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है और यह प्रोग्राम कैसा होने वाला है। तो तरुण महाजन सर, thank you very much for your wholehearted support to me and my team through this program. Welcome all the participants. Over to Shashika. Thank you, sir. Now, without wasting much of the time of our listeners and viewers who are attending this very important and unique program for the our members, now I directly invite CA Tarun Mahajan Sahab for his deliberation and whatever structure he may have. शशि भैया मैं बीच में यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा। वैसे तो हमारे तरुण महाजन सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिपाटी हमारी है। मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने मतलब वैसे तो विथ ऑल रिगार्ड्स टू ऑल माय गुरु एंड टीचर्स, बट सर मैंने 2000 में आपसे पढ़ा, शायद वो पहला बैच रहा होगा, और उसके बाद आपने इस तरह से मोटिवेट किया कि हमने उस जमाने में जब खैर होड़ तो उस समय भी हुआ करती थी, लेकिन 2000 में आपके साथ पढ़ करके, आपसे ज्ञान लेकर के, और आज हम इस लायक बने हैं। तरुण महाजन सर मेरे हिसाब से मतलब 6 डिजिट्स में स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं अभी तक, और करीब आज 20-22 साल स्टडी के हो चुके हैं, और हम सबको सीए फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स प्लस शायद पोस्टिंग भी सर लेते थे, तो उन सब में सर ने अपने ज्ञान और अपने अनुभव को साझा करते हुए सीए स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया है। विद दीज वर्ड्स, वेलकम टू तरुण महाजन सर। थैंक यू। वेलकम सर। Thank you everybody for inviting me over here. First of all, I would like to thanks CIRC Chairman CA नीलेश गुप्ता जी। नीलेश भाई, ये आपका बड़प्पन है कि आप गुरु जैसा सम्मान मुझे आज भी देते हैं। हालांकि ये बात तकरीबन 20-21 साल पुरानी हो गई है,
और आज आप खुद देश के एक बड़े जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर. थैंक यू वाइस चेयरमैन सर अतुल जी, थैंक यू सेक्रेटरी सर Shashikant ji, and thank you whole CIRC team for giving me this opportunity to interact with members of Central India Regional Council as well as students of Central India Regional Council. It's a great opportunity for me. तो अब जैसा नीलेश जी ने बोला कि what is the structure of the program, we decided कि we will first see that what kind of participation do we see. Are we having more members or are we having more students over here? और accordingly I'll give direction to this program. तो एक quick analysis chat box में हम लोग कर लें कि those who are members over here they simply type members in the chat box. Those who are students over here they simply type student in the chat box so that मुझे एक बार demographic यहाँ पर मालूम पड़ जाए. And accordingly I decide, okay, some members are there, some students are also there. So far it looks like, okay, it's a mix of audience, more of members. Okay, great. So allow me to share my screen. Just a minute. Okay. So here I go now. हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और इससे ज्यादा करंट अफेयर कुछ नहीं हो सकता है कि आज सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अपना डिसीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दे दिया होगा. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अभी देश में एक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी बना हुआ है. पहले मैं आपको एक ब्रीफ टाइटल दूं, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है जो किसी टाइम पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हुआ करती थी क्योंकि उसका प्रमोटर पंजाब नेशनल बैंक था. अब वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का टैग मोर और लेस उसके ऊपर से हट चुका है. 6,400 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी ने ये डिसाइड करा कि वो 4,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करेगी और दुनिया के एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टर ग्रुप कार्लाइल को उसने 4,000 करोड़ का शेयर इशू करने के लिए डिसाइड करा. और जैसे ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने डिसाइड करा तो वन ऑफ द प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स टुक एन ऑब्जेक्शन इन फ्रंट ऑफ द सेबी कि the company is in violation of its article of association and maybe some of the provisions of the Companies Act. सेबी ने उठा करके इमीडिएटली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को बोला कि आप ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर 4,000 करोड़ रुपए का रोक दीजिए. कंपनी इमीडिएटली सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में चली गई अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आज सिक्योरिटीज 5 जुलाई उसकी पहली तारीख लगी थी सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में, बट कंपनी ने उसके एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की और आज 12 जुलाई को उसका डिसीजन होना था. We will come to know that decision about tomorrow because सेट की वेबसाइट इतना क्विकली अपडेट नहीं होगी कि अभी डिसीजन हो चुका या ऑर्डर उन्होंने दिया, एंड वी विल गेट इट इमीडिएटली. So it will be reflected on SET website maybe in 2-3 days, and it will be reflected on the Bombay Stock Exchange website maximum by tomorrow evening, because PNB Housing Finance will declare to the stock exchange that what was the decision of Securities and Appellate Tribunal. तो अभी एक क्वेश्चन से मैं इसको शुरू करता हूं. Is it necessary for a listed and frequently traded company to take valuation report from a registered valuer before making preferential allotment of its equity shares? So since the inception of Companies Act 2013, under section 62, it has been provided that if any unlisted company is going to make preferential allotment of its equity shares, तो ऐसी कंपनी को एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से पहले अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना होगा और जो प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यूअर सर्टिफाई कर दे उससे कम प्राइस पर कंपनी अपना शेयर इशू नहीं कर सकती है. तो चलिए लेट्स हैव अ क्विक विजिट ऑफ दिस सेक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट. सेक्शन नंबर 62.
further issue of capital. Allow me to zoom it in to show that you can also read it with me. First of all, I would like to create a background और उसके बाद फिर current controversy के ऊपर हम आते हैं. Section 62 subsection 1 clause A हमको ये बोलता है that if any company wants to make preference, if any company wants to make allotment of its equity shares, those shares must be offered to its existing shareholders first of all. यानी कोई भी आप शेयर इशू करना चाहते हैं तो it must be in the form of right issue. The purpose is very clear, so that existing owners' control is not diluted because of issue of new shares by the company. This is section 62 subsection 1 clause A. लेकिन अगर हम clause C की तरफ आए, clause C gives us an exception. If a company wants to avoid a right issue and wants to make a public issue of its equity share, or wants to make preferential allotment of its equity shares, then what is the provision? This is section 62 subsection 1 clause C. It says that company can make allotment to any persons if it is authorized by a special resolution. Number one, it need to pass a special resolution. Now, whether or not those person include existing shareholder, this allotment of share can be either for cash or for kind. If the price of such share is determined by valuation report of a registered valuer, subject to compliance with other provision. 62(1)(c) ने बोला कि अगर आप एक कंपनी हैं और शेयर इशू करना चाहते हैं तो सिर्फ राइट इशू करिए और कुछ भी मत करिए. राइट इशू के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो फिर ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, and number 2, you need to get your shares valued by the registered valuer, right? लेकिन जब हम इससे रिलेटेड रूल्स में जाएंगे तो प्रोविजन इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. ओके, जस्ट अ मिनट. Okay, so now let's talk about Share Capital and Debenture Rules 2014. Companies Share Capital and Debenture Rules 2014, Rule number 13, which talks about issue of shares on preferential basis. तो यहां पर सब रूल 1 में उसी बात को रिपीट किया है कि कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करती है प्रेफरेंशियल बेसिस पर तो सबसे पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और साथ में एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी. लेकिन यहां एक एक्सेप्शन साथ में दिया गया. इफ आई सी दैट एक्सेप्शन, दिस इज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014. And here this is rule number 13, issue of shares on preferential basis. And here it says there is a proviso to sub rule 1, provided further that the price of the share to be issued on preferential basis by a listed company shall not be required to be determined by the valuation report of a registered valuer. यानी सेक्शन रूल नंबर 13 सब रूल 1 प्रोविजो 2 ने एक एग्जम्पशन दे दिया. उसने बोला कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है. बट एट द सेम टाइम if the company is listed, it needs to follow Security and Exchange Board of India's issue of capital and disclosure requirements. SEBI ICDR need to be followed. Now SEBI ICDR clearly says that if a listed company wants to make preferential allotment, that is allotment to some selected people of its equity shares, then the floor price should not be less than
the floor price should not be less than volume weighted average price of last 26 weeks or the volume weighted average price of last 2 weeks, whichever is higher. यानी वैल्यूएशन रिपोर्ट से तो एक लिस्टेड कंपनी को छुटकारा मिल गया, लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी आईसीडीआर ने ये बोला कि कंपनी खुद ही एक कैलकुलेशन कर ले, जो भी एक अपॉइंटेड डेट हो, जो भी एक डेट पर सेबी गाइडलाइन के हिसाब से डिसाइड होती हो, उसके पहले के 26 वीक्स में वीकली हाई एंड लो प्राइस का एवरेज निकाला जाए और ऐसा पिछले 26 वीक्स मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ अ ईयर के लिए किया जाए और फिर उन 26 एवरेज प्राइसेस का फिर से एवरेज निकाल लिया जाए। यानी आप किसी एक वीक की प्राइस लीजिए, वीक का हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस, वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लीजिए और वीक का लोएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लेंगे, उसका एवरेज करेंगे और ऐसी 26 वीक की प्राइस मिलेगी, उनका फिर से एवरेज करेंगे। Number one, you make volume weighted average price average of last 26 weeks. Number two, you make volume weighted average price average for last 2 weeks. Then choose the price whichever is higher. अब आपकी issue price इस cut off price से कम नहीं होना चाहिए, so that becomes your floor price. So it is clearly evident that if you are a listed company and wants to make preferential allotment of your equity shares, आपको वैल्यूएशन करवाने की जरूरत नहीं है, बट एक फ्लोर प्राइस सेबी गाइडलाइन में बताई है। If you want to get done the valuation, you will have to go to a registered valuer and he will issue a valuation report under his signature. But as far as the volume weighted average price is concerned, you don't need any report. Company itself can do it and it can submit the report to Security and Exchange Board of India that हमने जो issue price decide करा है, जो floor price है हमारा, उसके नीचे नहीं जाता है। So this is rule number 13 of share capital and debenture rules 2014. Read with section number 62(1)(c) of the Companies Act 2013. और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही किया। If I check the share price of PNB Housing Finance, then just look here. Allow me to take price. Okay, look here and just zoom it. Okay, this is the price chart of PNB Housing Finance Limited. In fact, allow me to do one thing. So, look here. पिछले एक साल में PNB हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस कुछ इस तरह से रहा है। 200 रुपीस से ये ट्रेवल करते हुए 400 रुपीस को टच करने को हुआ अक्टूबर 2020 में और उसके बाद 400 रुपीस की रेंज में अप डाउन चलता रहा। तो अगर पिछले 26 वीक्स का मैं एवरेज हाफ अ ईयर का एवरेज निकालने भी जाऊंगा फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, तो कहीं नवंबर दिसंबर से लेकर के मई के मंथ तक अगर मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालूंगा तो दैट विल बी रफली 380, 390, 400 रुपीस। लेकिन आप देखिए कि 21 ऑफ मई के बाद में इस शेयर में, इसके प्राइस में एक राइज स्टार्ट हुआ एंड जस्ट लुक हियर, नाउ वी नीड टू लुक इट डे बाय डे। It was 392 on 20th May. In fact, on 25th May also, it was 403 rupees. इस पूरी केस स्टडी में 25th May एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। I'll tell you 25th May क्यों एक इंपॉर्टेंट डेट है।
दूसरी इंपॉर्टेंट डेट इसमें 31st ऑफ मई आती है। 25th ऑफ मई से इस शेयर ने अपवर्ड मूवमेंट लिया, 403 से ये उठ के सीधे 425 रुपए हुआ। देन इट बिकेम 438 रुपीज। उसके बाद में 31st मई को एक इंपॉर्टेंट इवेंट डेट थी। ऑन दैट डेट इट बिकेम 525 रुपीज। 1 जून को 630, 2 जून को 693 और 7th ऑफ जून को इट वाज 881। और इसके बाद में भी यहाँ पे प्राइस अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन आफ्टर 11th ऑफ जून इसमें फिर से एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये फिर से एक इंपॉर्टेंट इवेंट डेट आई। विल डिस्कस अबाउट दिस डेट लेटर। एंड स्टिल today, 12th of July, it was settled at 760 rupees as compared to the 400 rupees price range. और इसी के बीच में सेबी गाइडलाइन, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल और सारी चीजें यहां पर हो चुकी है पिछले 1 महीने के टाइम इंटरवल के अंदर। चलिए, लेट्स गो टू द बेसिक, लेट्स बैक टू द बेसिक। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में वापस चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हमको साथ में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में फिर से एक बार विजिट करते हैं और देखते हैं कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्या पढ़ा था, सेक्शन 5 क्या पढ़ा था, सेक्शन 6 क्या पढ़ा था कंपनीज एक्ट का। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद हमको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट का कोई खास काम पढ़ा नहीं। तो इसको रिविजिट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा। सेक्शन 7 भी हम देखेंगे, 5, 6, 7 तीनों सेक्शन, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की कंट्रोवर्सी फिर उसके लाइन में। तो सेक्शन 7 ये बोलता है, इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड अ कंपनी यू नीड टू गिव मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर। कंपनी बनानी है तो मेमोरेंडम बनाना ही पड़ेगा, कंपनी बनानी है तो आर्टिकल भी बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो you will not be an article free company. In that case, the model article will be your article. तो effectively मैं कह सकता हूँ, you cannot form a company without memorandum of association and article of association. Article of association is a very important document for the company. Even if you don't make your own article of association, in that case, the model article given in schedule 1 will become your article of association. You cannot come into existence without article of association. सेक्शन 5 को लेकिन अब हम देखें, वहां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लेकर के क्या बोला है। सेक्शन 5 says that where the article contains provision, subsection 6, article of a company shall be in the respective form specified in table F, G, H, I, J. F, G, H, I, J. इसमें से if you try to recall, जो table F है, that is the model article of association of a company limited by shares, and PNB Housing Finance Limited, a listed company, it is also a company limited by shares. Now look. Just a minute. Give me a moment, please. Okay. Look here. Subsection 7 says a company may adopt all or any of the regulations contained in the model article applicable to such company. कंपनी के लिए अलाउड है कि कंपनी मॉडल आर्टिकल में लिखी हुई बातें अपने आर्टिकल में कॉपी कर सकती है। बट सबसेक्शन अगर मैं यहां पे देखूंगा, सबसेक्शन 2 का प्रोविजन, यहां this is going to play an important role, provided that the article shall also contain such matters as may be prescribed. इन आर्टिकल में वही होगा जो टेबल F में लिखा है। Provided that nothing prescribed in this subsection, आज अगर सेट ने कोई डिसीजन दिया होगा, एडजर्नमेंट नहीं किया होगा,
तो डेफिनेटली सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस प्रोविजन को भी कंसिडर किया होगा। Provided that nothing prescribed in this subsection shall be deemed to prevent a company from including such additional matters in its articles as may be considered necessary for its management. बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि टेबल एफ के अलावा वो कुछ भी ना लिख सके। टेबल एफ के मॉडल आर्टिकल को कंपनी अपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकती है, कंपनी उसको ऑल्टर भी कर सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कंपनी उसमें एडिशनल मैटर्स भी इंक्लूड कर सकती है। सी इवन इफ योर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड सेबी गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू यू, कंपनीज एक्ट इज द बेस। कंपनीज एक्ट लगना तो बंद नहीं होगा इवन इफ द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंपनी अपने आर्टिकल में टेबल एफ के अलावा एडिशनल प्रोविजंस कर सकती है, और ऑब्वियसली ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी पर बाइंडिंग है। Article of association is binding on the company. अब अगर हम चल करके टेबल एफ को देखें कि क्या टेबल एफ में, देखिए सारी कंट्रोवर्सी इस बात की है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 6000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी ने जब ये डिसाइड करा कि वो 4000 करोड़ रुपए के शेयर कार्लाइल ग्रुप को अलॉट करेगी, यू सी द होल कंट्रोल इज चेंजिंग। अभी तक मोर और लेस कंट्रोल पंजाब नेशनल बैंक के पास है, बट इस अलॉटमेंट के बाद में कंट्रोल मोर और लेस कार्लाइल ग्रुप के पास पहुंच जाएगा। इतना बड़ा एक मेजर इवेंट कंपनी करने जा रही है, तो देखें, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स है। दिस इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, पब्लिक इशू भी नहीं ला रही है कंपनी, राइट इशू भी नहीं ला रही। टेबल एफ में अगर मैं पूरी की पूरी टेबल एफ को भी पढ़ लूं, तो टेबल एफ में किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा है कि फर्दर इशू ऑफ शेयर्स को लेकर के कंपनी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप पूरा टेबल एफ पढ़ डालिए, इसमें एक भी जगह पर नहीं लिखा है कि कंपनी अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर करेगी तो कंपनी को क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो इसमें क्लॉज है शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, सेकंड वन इज लीन, थर्ड वन इज calls on shares. Okay, चलो भी हाउसिंग फाइनेंस का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट ज्वाइंड हैं जिनकी ऑब्वियसली आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हुई है, आई सपोज उन्होंने कभी किसी कंपनी का शायद ही मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा होगा। पर बच्चों, अगर आप गूगल पे सिंपली इतना सा टाइप कर दो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आई बिलीव आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाए। ऑथेंटिक सोर्सेज हैं और बहुत सारे, बट फ्री सोर्स के फॉर्म में आप ऐसा कर सकते हैं और इसको आप स्टडी कर सकते हैं पूरा का पूरा कि आखिर इसमें क्या लिखा है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कई स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा, वो भी कौन से ईयर का, ईयर 1988-89 का, राइट। यहां पर वो भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहूंगा। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकली किस तरह का ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नजर आता है। अब हम आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। देखिए, सबसे पहले किए, फिर इंटरप्रिटेशंस लिखे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, फिर उसके बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बात शुरू करता है लीन की। आप मॉडल आर्टिकल में देखेंगे तो मॉडल आर्टिकल में भी देखिए बात की गई है लीन के बारे में। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा मैं इसमें नीचे आता हूं तो लीन के बाद में कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आर्टिकल बात करता है। ये देखिए, मॉडल आर्टिकल भी कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में बात करता है। लीन के बाद मॉडल आर्टिकल में कॉल्स ऑन शेयर है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आर्टिकल में कॉल्स ऑन शेयर्स भी है, लीन भी है,
लेकिन इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा प्रोविजन यहां पर और वो है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले तो ये बात आ गई कि इज इट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, और आंसर बहुत क्लियर है कि नो, दिस इज नॉट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन ने क्लियरली ये बात मेंशन की है कि कंपनी कैन प्रोवाइड एडिशनल मैटर्स इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुनने को ये बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन 4000 करोड़ रुपए का डिसीजन भी इसके ऊपर बेस करेगा कि क्या ये प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का लॉ के कॉन्ट्रावेंशन में मान लिया जाए। एंड आंसर इज क्लियरली नो, इट इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन, क्योंकि यहां लिखा है कि कंपनी एडिशनल मैटर्स चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देखें, सेक्शन 6 क्या बोलता है। सेक्शन 6 ये बोलता है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or article of the company। अगर कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जाकर के कुछ लिख दे तो फिर मेमोरेंडम या आर्टिकल की बात नहीं सुनी जाएगी, तब कंपनीज एक्ट की बात सुनी जाएगी। बट अ क्वेश्चन अराइजेस कि जब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर के कुछ क्लॉजेस इंसर्ट कर देता है, तो इज इट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट? एंड आंसर इज क्लियरली नो, क्योंकि कंपनीज एक्ट के मॉडल आर्टिकल में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। दिस इज जस्ट एन एडिशनल प्रोविजन। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर के पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने आर्टिकल में जो लिखा, it says whether at any time it is proposed to increase the subscribed capital of the company by allotment of further shares either out of unissued capital or increased share capital, then such further offer shall be offered to existing shareholder। मतलब पहले हम राइट इश्यू ऑफर करना चाहेंगे, 15 दिन का टाइम शेयर होल्डर को रिस्पॉन्ड करने के लिए देंगे कम से कम, और मैक्सिमम 30 दिन कि वो राइट अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर इस टाइम पीरियड में शेयर होल्डर अपने राइट के बारे में इंफॉर्म ना करें या फिर वो डिनाई कर दें कि हमको शेयर चाहिए ही नहीं, तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में जैसे चाहे इन शेयर्स को डिस्पोज कर सकता है। ये सारी की सारी बातें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सेक्शन 62 से कॉपी पेस्ट की गई है, पूरा का पूरा मैटर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको सेक्शन 62 यहां पे दिखा देता हूं एक बार। जितना भी अभी मैंने आर्टिकल में पढ़ा वो ये सारा मैटर है जो सेक्शन 62 में लिखा था, उसको कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए, अब मैंने इसको एक मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। लुक हियर, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब क्लॉज 1, जो राइट इश्यू के बारे में बात कर रहा था, हम कंपनी का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 4000 करोड़ रुपए का मामला है आखिर। The further share aforesaid may be offered to any persons, मतलब हम राइट इश्यू को अवॉइड कर सकते हैं, whether or not those persons include the person referred to in clause A of subclause 1 hereof, if authorized by special resolution। लेकिन अगर हम राइट इश्यू को अवॉइड करना चाहें तो हम उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। अगर यहां लिख देते कि नहीं हम उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो ये कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में हो जाता, क्योंकि वहां स्पेशल लिखा हुआ है, और फिर कंपनीज एक्ट प्रिवेल करता, आर्टिकल प्रिवेल नहीं करता। ईदर फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इफ द प्राइस ऑफ सच शेयर इज डिटरमिन्ड बाय वैल्यूएशन ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यू। खुद कंपनी के आर्टिकल में लिखा है
कि हम शेयर का वैल्यूएशन करवाएंगे, एंड दैट टू माइंडेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, not by practicing chartered accountant, not by auditor of the company, not a self attestation of the management of the company, but by registered of valuer. We all know that a company is bound by its own article of association, provided it is not in contravention of the Companies Act 2013. This clause is not in contravention of Companies Act 2013. जितना कंपनीज एक्ट बताए, कोई कंपनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अगर उससे 2 कदम आगे जाकर के कंप्लायंस करना चाहे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इट इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज इन एडिशन टू व्हाट द कंपनीज एक्ट इज रिक्वायरिंग. तो एक बात क्लियर होती है कि ये प्रोविजन जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, ये कंपनी पर बाइंडिंग है. कंपनी को रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करना चाहिए. यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसी क्या बड़ी बात हो जाएगी अगर कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट ले ले. आप देखिए, जो शेयर 400 रुपए पर चलता था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की वजह से 800 रुपए पर आ गया. यानी प्राइवेट सेक्टर को इस कंपनी में कंट्रोल देने से इतिहास इस बात का गवाह है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वैल्यू, शेयर प्राइस आई एम सॉरी, उनकी ओरिजिनल वैल्यू से हमेशा कम चलती है. क्योंकि बैक ऑफ द माइंड लोगों को लगता है कि भाई इस कंपनी में ट्रिमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, लेकिन ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. गवर्नमेंट बहुत स्लो एक्ट और रिएक्ट करती है, बड़े कंजर्वेटिव तरीके से बिजनेस करती है, इसलिए वैल्यू अनलॉक नहीं हो पाती है. हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल कि जहां भी गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल निकल करके प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता है तो वैल्यू अनलॉक होती है. वैल्यू अनलॉक होती है. अब अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आप वैल्यूएशन करवाने जाएंगे तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में ये नहीं देखेगा, सिर्फ ये नहीं देखेगा कि हिस्टोरिकली प्राइस 300-400 रुपए थी तो वैल्यू 300-400 रुपए है. वो सारे फ्यूचर पोटेंशियल्स को कंसिडर करेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर. वो देखेगा कि कार्लाइल ग्रुप क्यों, मैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंसिंग कंपनी को अगर इस कंपनी को बेचूं, कंट्रोल ट्रांसफर कर दूं तो वैल्यू अनलॉक हो जाएगी. और ये शेयर 400 रुपए का नहीं, 500, 600, 700, 800 रुपए की वैल्यू रखता है. आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक एडवांटेज विच इज अवेलेबल टू कार्लाइल ग्रुप. आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज विच विल बी अवेलेबल टू एनी बायर ऑफ शेयर विच इज अ प्राइवेट प्लेयर. अब अगर रजिस्टर्ड वैल्यू लिख दे कि शेयर 800 रुपए की वर्थ रखता है या 700 की रखता है, तो कंपनी 700 रुपए से नीचे, 500 रुपए से नीचे, व्हाटएवर जो भी रजिस्टर्ड वैल्यू ने सर्टिफाई करा है, अपना शेयर इशू ही नहीं कर सकती. तो कुछ शेयर होल्डर्स ने ये इल्जाम लगाया कंपनी पर कि 390 रुपए पर कार्लाइल ग्रुप को 4000 करोड़ रुपए की शेयर अलॉट करना is unfavorable for the shareholders of PNB. Unfavorable for the shareholders of PNB. देखिए, मैं आपको शेयर होल्डिंग दिखाता हूं. Just give me one moment. I'll open annual report of PNB हाउसिंग फाइनेंस. ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है. And if I look here, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के पास 32.79% होल्डिंग है. These are 5 crore 49 lakh 14,840 shares. Total number of shares in the company are 16 crore 74 lakh something, right? अब अगर कार्लाइल ग्रुप
यहां पे एंटर होता है तो जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पीएनबी, उसका कंट्रोल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर से कम हो जाएगा। आप मुझे मेरी एक इन्वेस्टी कंपनी का कंट्रोल मुझसे छीन रहे हैं। So there is a concept called control premium। जब मारुति सुजुकी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर निकली थी तो कुछ हंड्रेड्स कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ कंट्रोल छोड़ने के लिए मिले थे। जब स्टार टीवी में से फॉरेन पार्टनर ने ये कोशिश की थी कि इंडियन पार्टनर अपना 1% शेयर बस फॉरेन पार्टनर को दे दे ताकि उनके पास मोर देन 50% शेयर हो जाए, उसके लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑफर किए गए थे। यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो पीपल आर सेइंग, this is not my personal opinion, this matter is already sub judice, this is already under the jurisdiction of Honorable Securities and Appellate Tribunal. I am not expressing any opinion from my side. I am telling you just the story that what is happening. I am not a right person to decide what is right and what is wrong. That the Honorable Court will decide. So people are saying कि पीएनबी नाम का जो बड़ा सारा शेयर होल्डर है इसका कंट्रोल चला जाएगा विदाउट गेटिंग एनी कंट्रोल प्रीमियम। तो एक तो इनजस्टिस हो जाएगा पीएनबी के साथ, और दूसरा इनजस्टिस हो जाएगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बचे हुए शेयर होल्डर्स के साथ कि एक नए शेयर होल्डर को 390 रुपीस पर शेयर दे दिए गए जबकि शायद इस कंपनी की वैल्यू 700 या 800 रुपीस होती। नाउ लुक एट दीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स। 25 मई को क्या हुआ? What happened on 25th of May? I'll tell you. Let's go see. Let's go in chronological order. Look, 25th of May 2021 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक इंटीमेशन दी, क्योंकि कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की जो एलओडीआर गाइडलाइंस है उसका जो रेगुलेशन नंबर 30 है वो लिस्टेड कंपनी को बोलता है कि जब भी आप बोर्ड मीटिंग करने वाले हो तो स्टॉक एक्सचेंज को इसके बारे में पहले से बता दो कि बोर्ड मीटिंग है, कितनी तारीख को है, किस समय है और एजेंडा क्या है। यहां कंपनी ने अपने एजेंडा में बोला we wish to inform you that meeting of board of directors of PNB Housing Finance Limited is scheduled to be held on May 31st, 2021, and to consider fundraising by the company by issue of equity share and or other security by way of preferential issue. अब देखिए इंडिया में वैसे तो इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी ने ये नहीं बताया कितने रुपए के शेयर इशू करने के लिए हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई है, किसको शेयर इशू करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई है, कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया। बताना कंपनी की ड्यूटी भी नहीं है और ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। जब ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में आएगी तो शेयर प्राइस अफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इंटीमेशन 25 मई को ट्यूसडे को बाजार बंद होने के बाद में बीएसई एनएसई को दी गई थी। राइट। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मार्केट में पहुंची तो 403 रुपए का शेयर 26 मई को 425 हो गया, 27 मई को 429 और 28 मई को 438। सिर्फ इस बात की इंटीमेशन से कि बोर्ड मीटिंग है और कंपनी नए शेयर इशू करने वाली है। देखिए प्राइस 403 से 438 तक आ गया 28 मई को। 28 मई फ्राइडे, 29th and 30th May सैटरडे संडे मार्केट वाज ऑफ। ओके, दिस हैपेंड। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 31st मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई
और बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम था वो 31 मई को ही सुबह के वक्त, शायद 9, 9:30 बजे, वो जो भी टाइम है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने ये इंटीमेट करा दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कर लिया है और हम कार्लाइल ग्रुप को और कुछ दूसरे शेयर होल्डर्स को 4,000 करोड़ रुपए के शेयर इश्यू करने जा रहे हैं। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट में ढूंढने जाएंगे तो बैलेंस शीट का जो साइज है, आई बिलीव okay, let me just check the index. Look here. कंपनी की बैलेंस शीट का साइज अगर हम यहां देखने जाएं, so the balance sheet is at page number 200. Okay. Just a minute. Look here. ये है कंपनी की बैलेंस शीट, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है, 21 की भी अवेलेबल है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप अगर इसमें देखेंगे तो कंपनी की जो इक्विटी है, इट इज जस्ट दिस इज रुपीज इन crores. It is roughly 7,000-8,000 करोड़ और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का वो 6,000 करोड़ है। एंड नाउ लुक हियर, बोलती हम छोटा मोटा शेयर अलॉटमेंट नहीं करने जा रहे हैं, 4,000 करोड़ का शेयर अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। यानी इस शेयर अलॉटमेंट के बाद ये नया शेयर होल्डर रफली 40% कंपनी को कंट्रोल करने लगेगा। अब जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आती है तो आप देखिए उसका क्या इंपैक्ट आता है। 31 मई को ही ये शेयर 438 से बढ़ के 525 होता है और एक दो दिन में लोगों को इसका फुल पोटेंशियल रियलाइज हो जाता है। 630 नेक्स्ट डे, 693 नेक्स्ट डे, 763 नेक्स्ट डे, 839 नेक्स्ट डे एंड 881 on the next Monday. So मंडे से मंडे के बीच में शेयर जो है 438 से बढ़ के 881 तक जाता है। थोड़ा सा करेक्शन भी आता है उसके बाद में और फिर 815 रुपए पर शेयर सेटल होता है and there starts a controversy now. So there is one of the proxy advisory, there are proxy advisory companies are there who help you to cast votes in the annual general meeting and extraordinary general meeting of a company, and who also advise you how should you vote in the favor or against the resolution or whatever. तो जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई कि there is a controversy and the matter has gone to SEBI, it started declining. And look, 15th of जून को जाकर के स्टॉक एक्सचेंज ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से क्लैरिफिकेशन मांगा कि व्हाट इज दिस ऑल कंट्रोवर्सी, क्या है ये सब कुछ। इन्होंने देखिए क्या हुआ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने क्या प्रपोज करा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग प्रपोज करी, स्पेशल रेजोल्यूशन प्रपोज करा, वैल्यूएशन रिपोर्ट ली ही नहीं और 15 जून को इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से हमको सिर्फ 26 वीक और 2 वीक की प्राइस का एवरेज लेना है, व्हिचएवर इज हायर देखना है, दैट बिकम्स आवर फ्लोर प्राइस, उससे ऊपर के भाव पे हमको अलॉटमेंट करना है और हम 390 पे अलॉटमेंट करना है। हमको वैल्यूएशन रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने ऑडिटर से पूछ लिया, हमने ऑडिटर के एक पार्टनर है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उनसे भी पूछ लिया, उनके हिसाब से इस केस में अंडर कंपनीज एक्ट वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है
और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पार्टनर ने ये बात बिल्कुल सही कही कि अंडर कंपनीज एक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो उसकी जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, यहां मेजर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द कंट्रोल प्रीमियम? आपके मेरे जैसे जब लोग शेयर खरीदते हैं, वी डोंट कंट्रोल द कंपनी। इफ आई बाय द कंपनी फॉर 390 rupees per share, that's fine, I'm interested in dividend and appreciation in market price, that's it. But if I'm buying 25%, 30%, 40% stake in the company, that company comes under my umbrella. Together we can synergize and I can explore the potential. I may have some hidden agenda also, but okay, this kind of PSU company is under my control. So government will start listening to some of my other issues also. तो considering उन सब बातों को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंसिडर नहीं करा, और ये लंबा सारा एक्सप्लेनेशन जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने 15 जून को सबमिट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन 18 जून को जाकर के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 18 जून को जाकर के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि नहीं, आप इसको रोकिए, यू कांट डू दिस, स्टॉप दिस। नेचुरली अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बीएससी की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं, जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट 5 more minutes, I won't take much of your time, I'm sorry, I won't take much of your time. Then we'll have the question answer session on this case study. Just a minute. There is my Word file. Okay, here it is, and I need this. Look here. अभी अगर हम फ्लो ऑफ इवेंट बीएससी के पास जो चीजें सबमिट हुई है वहां से देखना शुरू करें, look here, 25 मई को मई को रात को 9 बजे ये इंटीमेट किया, वी आर गोइंग टू हैव अ बोर्ड मीटिंग। 31 मई को सुबह 9 बजे, 9:30 बजे ये इंटीमेट किया कि हम 4000 करोड़ रुपए के शेयर इशू करने जा रहे हैं। उसके बाद जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी गई। 18 जून से 21 जून तक ई वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। 22 जून को कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था कंपनी को इसके लिए। इस बीच कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई तो 14 जून को क्लैरिफिकेशन मांगा स्टॉक एक्सचेंज ने पीएनबी से। 15 जून को क्लैरिफिकेशन सबमिट करा कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के पास। उसके बाद 19 जून को कंपनी ने इंटीमेशन दी स्टॉक एक्सचेंज को कि 18 जून को हमको सेबी से लेटर मिला है कि इस प्रोसेस को यहीं रोक दिया जाए। 21 जून को फिर से इंटीमेशन दिया कि हम सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले। 22 जून को होनी थी ईजीएम। सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इमीडिएटली एक ऑर्डर दिया कि वोटिंग प्रोसेस ना रोकी जाए, लेकिन वोट पढ़ने के बाद जब स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट देता है, एनएसडीएल इस कोई 10-12 रेजोल्यूशन पास होने थे, उसमें से रेजोल्यूशन नंबर 1 और 2 इस इशू के बारे में थे। उन्होंने बोला रेजोल्यूशन नंबर 1 और रेजोल्यूशन नंबर 2 की वोटिंग को कवर्ड रखा जाए, हिडन रखा जाए। एनएसडीएल उस ई वोटिंग प्रोसेस के रिजल्ट को किसी को भी ना दिखाए, एक बार सेट अपना ऑर्डर दे दे, उसके बाद में फिर ये चीज दिखाई जाए। तो 21 जून को सिक्योरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, और अब जाकर के 5 जुलाई को एक हियरिंग हुई। कंपनी ने वहां एडजर्नमेंट मांग लिया। 12 जुलाई की आज की डेट थी। कल पता चलेगा कि आज की हियरिंग में एक्चुअली एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो यू कैन सी
that how share price can drastically change, how important is article of association of a company, how important is each and every subsection, clause and explanation. Income tax act में तो इतनी बारीकियों से हम जरूर देखते हैं, but usually companies act को इस तरह से नहीं देखा जाता है. So this is really important to see this development, and it will be a learning point for whole chartered accountant community also कि कहाँ पर valuation report client को advise करना चाहिए और कहाँ पर advise नहीं करना चाहिए. So I invite questions from your side now, either in the chat box or you can raise your hand. I will unmute. You can ask. Atul sir. Thank you, Tarun sir. While our respected chairman, C.A. Nilesh Gupta ji has said that you are his guru, so you are guru for the entire team of CIRC. And one member is saying that, sir, you should teach law as well, because the way you have explained the functioning and working of stock exchange, and especially like mixing it with the company law, it is really a wonderful initiative taken by you. And I'm sure with your experience, with your words of wisdom, we as a chartered accountant would be in a position to understand the share market as well, and we would be in a better position to understand what exactly is going on. I would like to add one or two things, and which I'm expecting that you would be covering in your next deliberation. Especially while we talk about, I was just reading a literature, or you can say a write-up sent by one of the leading member from Jabalpur, C. Anil Agarwal ji. He sent a write-up where he was talking about the sacrifice whenever there is a system of getting assets liquidated through NCLT. So as per his assessment, the banks are sacrificing to the extent of 90% of the total loan exposure. So if loan exposure is, let's say, 50,000 crore, then through NCLT, this 50,000 crore is getting converted into 5,000 crore, and the borrower is getting a relief of 45,000 crores. So this kind of analysis was there. So that was really an eye-opener for me. And while you started this session today, so I thought that I will definitely, at the end of the session, I will discuss this part. And I believe if you will take care, if you take up this issue also, so that whenever we go for either for the purpose of investment into the company or for the purpose of bank audit, we should understand what all technical issues are there, which normally borrowers are taking liberty, and they are getting a relief. And the very good statement was there, because of this NCLT process, most of the borrowers are getting the benefit, and they are the willful defaulters actually, but they are getting a relief, and at the same time they are also getting a direction from the court that they are free to do the business, meaning thereby whatever they have defaulted in the past, and all defaults have been made good. And in such case, definitely we as an investor, we as a shareholder are always feeling like we have been cheated. And that is the only reason banks are normally booking huge losses. And मैं जहाँ तक समझता हूँ, येस बैंक की मैं बात करूँ या येस बैंक का जो भी फेट हुआ, या और बाकी के बैंक्स का जो भी फेट हुआ, कहीं ना कहीं उसमें इस तरीके का जो एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, और जिसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन एंड डाउन एवरी डे. सो this is my humble request to you, kindly take up this issue also, so that we would be in a better position to understand. And there was one query from member Neha Tewatia ji, so you have already responded that query. So it was really a very wonderful session, sir, and I hope in the time to come we would be learning a lot from you, and hats off to you, and the way you have done the analysis, it was really remarkable, sir. We are really happy to have a person like you as a news analyst, and I'm sure the members who are present here, they must have got the benefit. I got the comment also from one of the member, Dr. Girish, and he has also given a comment like it was really a wonderful session.
So Dr. Girish Goyal was there, and he specifically mentioned that really a nice topic, and members are asking for the recording also. So I'm sure in the time to come also, we will be having more and more deliberation from you like this. Thank you. I'm really thankful to you, and I'm thankful to the CIRC chairman for taking this initiative. I'm thankful to CA Nirvik Gandhi ji, CA Shashikant Chandrakar ji, and the attendees who are present here. So, and looking forward for more and more sessions from you, sir, from the time to come. Thank you very much once again to each one of the participants. And again, I am thankful to the CIRC and the entire staff sitting at Kanpur and organizing this kind of programs. So thank you very much, sir, for your wonderful deliberation. Over to Shashikant Chandrakar. Yeah. ठीक सर, एंड कर दें सर? जी खान साहब एंड कर दें सर. थैंक यू सर. Thank you. Bye.